So student, today we are going to start with the unit number 1, ordinary differential equation, first order ordinary differential equation. पहले तो हम बात करेंगे ordinary differential equation. It means why differential equation is known as the ordinary. So we will define the ordinary differential equation first. अब आपने डेरिवेटिव तो पढ़ा हुआ है बड़े अच्छे से. So when you differentiating, let y is any variable and y depending upon x. So you must understand the two things first: dependent variable and independent variable. These two things you must know that. Dependent variable जो किसी अदर वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करे, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा. नाउ हियर लाइक y इज इक्वल टू, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ x स्क्वायर प्लस 1. अब x की वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यू आएगी. तो यहाँ पे y जो है वो डिपेंडेंट है और जो x है वो इंडिपेंडेंट है. सो व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट, बिकॉज व्हेन आई विल give this observation, like I will write somewhere independent variable, dependent variable. So you must be aware whether I will use in the definition or somewhere else. So the first I will define the definition of ordinary differential equation. There are a number of definitions. So one of the definition is a differential equation. I will shorten write in the DE always. Is an equation which involves independent variable comma dependent variable and differential coefficient. Differential coefficient होता है dy by dx, derivative of one variable with respect to other variable. And differential coefficients of the dependent variable with respect to independent variable. Very simple and easy definition means जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और उनका डेरिवेटिव हो. तो हाउ यू विल आइडेंटिफाई विच इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड विच वन इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जिसका डेरिवेटिव हो रहा है वो डिपेंडेंट है, जिसके विद रिस्पेक्ट टू हो रहा है वो इंडिपेंडेंट. कई बार हम डेफिनेशन इस तरह से बोल सकते हैं, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द इक्वेशन विच इन्वॉल्व द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable or single variable के with respect. This is very important. मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक ही वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, मोर देन वन वेरिएबल के ऊपर नहीं. अगर एक से ज़्यादा करेंगे तो फिर पार्शियली बन जाएगा. वो नेक्स्ट हमारा एडवांस टॉपिक है. इट मे बी कम्स इन द फ्यूचर इन सम अदर सेमेस्टर. बट हियर you must understand differential equation, ordinary differential equation, ordinary, जिसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिंपल एक सिंगल वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है. y x के ऊपर कर सकता है, x t के ऊपर कर सकता है. सो वी हैव मैनी एग्जांपल्स, यू कैन टेक मैनी एग्जांपल्स लाइक. अब ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स बोला है, डबल डेरिवेटिव हो सकता है, ट्रिपल डेरिवेटिव हो सकता है, दैट इज ओके. बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद बी ओनली लाइक डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर डबल डेरिवेटिव है. डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव सेकंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं. एन स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल.
इक्वेशन के अंदर इक्वल टू साइन जरूर होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। अब दूसरी एग्जांपल ले सकते हैं और भी, जैसे dy बाई डी एक्स स्क्र प्लस सिंगल डेरिवेटिव भी है, उसका स्क्वायर भी है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम। सो dy बाई डी एक्स plus 1, you can take many examples, dy by dx whole square plus 3y square is equal to 5x. So you can take many examples. Means you must know two very important things, the two major properties of the ordinary differential equation, that is order of differential equation and degree of differential equation. Correct? So order and degree. Clear? So what is the order? The order of differential equation is the, देखो जैसे मैंने सेकंड ऑर्डर, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, so is the highest order of highest differential coefficient is the order of highest differential coefficient occurring in it, या present in it, occurring in it. Very simple to understand. जैसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास नंबर 1 दे देता हूँ, नंबर 2 दे देता हूँ, नंबर 3 दे देता हूँ। जो फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल, इसका ऑर्डर है 2, क्योंकि इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है 2। इसमें सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, हाई डबल भी है, तो इसका ऑर्डर भी 2। इसका ऑर्डर 1, सिंगल डेरिवेटिव है, इसका ऑर्डर भी 1। पावर को नहीं देखना, इसका देखना ऑर्डर, डेरिवेटिव तो सिंगल ही है। तो ये आपको क्लियर हो गया, ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन you must be clear about the order. Now what is the degree? Degree is the degree of differential equation is the degree of the highest differential equation, highest order differential coefficient in the differential equation. बड़ी सिंपल सी बात, जैसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है यहाँ पे 2, इसकी पावर कितनी है 1, तो इसका जो ऑर्डर है वो 2 है और डिग्री 1। अब इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है 2, इधर सिंगल डेरिवेटिव की पावर है 2, तो ये नहीं लेनी हाईएस्ट, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर है वो डिग्री होगी। इसका ऑर्डर 2, इसकी डिग्री 1, इसका ऑर्डर 1, डिग्री 1, क्योंकि इसकी पावर 1 है। इस इक्वेशन का ऑर्डर 1, डिग्री 3, क्योंकि सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसकी पावर है 3। बोलिए जी, जैसे मैंने ये एग्जांपल दी है, इसका हमने ऑर्डर और डिग्री निकालना है। तो ये जब भी आपको ये रूट हो, पावर ऐसे कुछ हो, तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं इसको रिमूव करने के लिए इसका स्केयरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ। जब मैंने स्केयरिंग बोथ साइड किया, ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया मेरे पास 1 प्लस dy बाई डी एक्स, और यहाँ आ गया 2 का स्केयर 4, और यहाँ डी स्केयर वाई डी एक्स स्केयर का होल स्केयर। ऑर्डर तो डबल है, ठीक है, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी 2 है, उसकी पावर कितनी है 2, तो दिस विल बी द आंसर। अंडरस्टैंड जी? बेटा जी, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, ये तो आपने पढ़ लिया, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है वो डिफरेंशियल, दिस इज द बुक इज डेफिनेशन। टेक्निकल डेफिनेशन ये एप्लीकेबल डेफिनेशन नहीं है,
एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से व्हेन यू विल सी, तो हमारे दो तरह के सिस्टम होते हैं। ये आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा हूँ मैं। दो तरह के हमारे को सिस्टम मिलते हैं। एक मिलता है डायनामिक सिस्टम, एक होता है स्टैटिक। डायनेमिक होता है जो चेंज विद टाइम होता है, चेंजेस विद टाइम, चेंज विद टाइम, ठीक है। जो नो चेंज विद टाइम, जो चीज़ आज जिस कंडीशन में पड़ी हुई है, जो उसका एनवायरनमेंट है वैसे पड़ी रहे, चाहे 10 दिन चल रहे हैं चाहे 10 साल है, उसको स्टैटिक बोलते हैं। डायनेमिक चीज़ जो चेंज विद टाइम होती है। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 99.99% थिंग्स आर डायनेमिक इन नेचर। डेरिवेटिव होता है, यू नो दैट डेरिवेटिव चेंज निकालता है, चेंज ये होता है चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। अगर कोई भी बंदा, मैथमेटिशियन, बायोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट, any scientist, any researcher in this world, in this universe, are looking forward to convert a physical system into mathematical form। मतलब उसने एक प्रॉब्लम को देख रहा है, वो पता नहीं वो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इट मे बी एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, और उसको वो एक मैथमेटिकल फिगर में कन्वर्ट करने की, मैथमेटिकल फॉर्म देना चाहता है, ताकि उसके ऊपर वो समझ सके। हमारा नॉर्मली क्या करता है, इसको बोलते हैं एक हमारा बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। ये मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है, उसमें क्या कहता है, ये कोई मैथमेटिक्स का चक्कर नहीं है। इसमें बेसिकली क्या होता है, किसी भी फिजिकल सिस्टम को मैथमेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो नाइन जो 60-70% जो साइंटिस्ट है ना, वो यही काम कर रहे हैं कि एक फिजिकल सिस्टम लेते हैं, जो सोचते हैं कि हम दुनिया को बताएं इसके बारे में, तो उसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, सालों सालों लग जाते हैं उसको। तो वो सारे के सिस्टम नॉर्मली तो वो डायनेमिक इन नेचर होते हैं। तो इसका मतलब जो फॉर्म करते हैं ना, वो जब फॉर्म करके वो मैथमेटिकल फॉर्म बना देते हैं, तो जो डायनेमिक सिस्टम होता है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है। जितने भी वो अपना एफर्ट लगा के वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, फिर उनके चेंजेस निकालते हैं, कौन सा वेरिएबल कितना चेंज हो रहा है दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट, एंड दे विल फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर मैं एक इसको एप्लीकेबल डेफिनेशन निकालूं, तो वो कहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डायनेमिक सिस्टम। जो मैथमेटिकल फॉर्मेशन होगी, कुछ 50% लोग तो लगे हुए हैं कि जी नया सिस्टम को कन्वर्ट करने में मैथमेटिकल में, 50% लोग उसके जो बाकी हैं वो क्या कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग फॉर्मेशन बन चुकी है उसमें कोई नया वेरिएबल आता है, नया चेंज आता है, तो उसको भी ऑब्जर्व करके उसमें ऐड करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं। बात समझ रहे हैं? समझ तो ये आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, वो आप कोई भी अगर मैकेनिकल इंजीनियर हो एंड यू आर इंटरेक्टिंग विद द एनी मशीन, सो व्हेन यू विल ऑब्जर्व इट्स आउटपुट, तो जो आउटपुट है वो भी डायनेमिक इन नेचर होगी, ठीक है। किसी के ऊपर डिपेंड करेगी वेरिएबल, वो चेंज होगी जब आप कोई इनपुट चेंज करते हो, तो उसकी भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही मिलेगी आपको। अल्टीमेटली आपका जो पूरा यूनिवर्स है वो डायनेमिक इन नेचर है मोस्टली। तो जब भी आप उस यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करने की जो स्टडी करते हो, यू नीड ए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, एंड व्हेन यू विल सी इट्स मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड यू विल गेट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ईच एंड एवरी डायनेमिक सिस्टम, ठीक है। अब हम जो करने जा रहे हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन आती है उसकी, लीनियर एंड नॉन लीनियर। इसका मैं प्रैक्टिकल भी आपको व्यू दूंगा आपको, लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल क्वेश्चन। अब दिस इज अ वेरी मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन।
कि डिफरेंशियल इक्वेशन समझाने की बात तो डेफिनेशन देखिए, इज सेड टू बी लीनियर if the unknown होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अननोन फंक्शन, जो अननोन फंक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव, जैसे y हमारा जितनी एग्जांपल ली है, जैसे यहाँ पे y हमारे पास जो है अननोन फंक्शन है, y जहाँ ऑल इट्स डेरिवेटिव, जहाँ सिंगल डेरिवेटिव हो तो ऑल इट्स डिफरेंस ऑड्स डेरिवेटिव, all its derivative occurring in the equation only in the first degree. फर्स्ट देखो, जितने उसके डेरिवेटिव और इटसेल्फ उसका जो डिग्री होनी चाहिए फर्स्ट होनी चाहिए, और किसी के साथ वो मल्टीप्लाइड नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास डी स्क्र वाई डबल डेरिवेटिव है, इसकी डिग्री भी 1 है, ये वाई आ रहा है, इसकी भी डिग्री 1 है, तो दिस इज द लीनियर। ठीक है, अब मान लो ये डबल डेरिवेटिव है, इसकी डिग्री आ गई 2, है ना, तो जहां मर्जी हो डिग्री 2 आ गई, ये नॉन लीनियर है, करेक्ट। तो जैसे उसने मल्टीप्लाइड भी नहीं होना चाहिए। मान लो अब ये y वेरिएबल है, ये dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है जी, ये भी नॉन लीनियर है ना, तो वो अब y वाले टर्म किसी y के साथ मल्टीप्लाई होनी चाहिए, वो चाहे डेरिवेटिव भी हो, और डिग्री भी हर डेरिवेटिव की, हर सिंगल डेरिवेटिव हो डबल डेरिवेटिव हो तो डिग्री उसकी 1 ही होनी चाहिए, पावर। तो दैट इज द लीनियर और नॉन लीनियर। अब बहुत सारे एग्जांपल है, जब आप किसी कर्व का ग्राफ बनाते हो ना, अगर तो आपको स्ट्रेट लाइन मिले उसको हम लीनियर बोलते हैं, जब हमें ग्राफ जो कर्व्ड मिल रहा है तो उसको नॉन लीनियर बोलते हैं। दिस इज वेरी सिंपल थिंग। मान लो आप एक फुटबॉल को किक कर रहे हो, फुटबॉल को किक किया, फुटबॉल ने आपको ऐसे, तो उसका जो इक्वेशन बनेगी ना वो बनेगी नॉन लीनियर, क्योंकि इसका पाथ नॉन लीनियर है। अंडरस्टैंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे?